Hello everyone, I hope you all are doing well. Myself Manjula. Now let's continue our discussion on chapter 3 New Centers of Power from class 12 Political Science. This is part 5, and in this particular part we are going to discuss about the few new topics added by CBSE in this particular chapter, that is about countries like Russia, Israel, India. Okay, so all these things we will discuss in detail. Here we go. See, first we will start our discussion from Russia country. You can see on the map. Okay, so this Russia, when it was part of Soviet Union, or you can say USSR, at that time also it was considered as the largest republic. Okay, and after the disintegration of Soviet Union in 1991, or you can say 1990s time period, after that disintegration, Russia, at that time also it emerged as a largest country in terms of land size, right? Now let's discuss about it. You can see here written as those things that Russia has been the largest part of former Soviet Union even before its disintegration, and after the dissolution of Soviet Union in around this early 1990s, and still it remained the largest country in terms of its land size. And after the disintegration of USSR, as you all know that we discussed in second chapter itself, that Russia emerged as the strong successor of USSR. USSR के position जो था that was now occupied by Russia. Russia was considered as a successor of USSR. Okay, so जो भी USSR के जो agreements थे उसके position जो थे that was occupied by Russia. And today's time Russia's GDP, we look at GDP, that is gross domestic product, it's currently there at the 11th position in the world. And this Russia country has a lot of reserves of minerals, natural resources and gases, which makes it a powerful country in the world, in the global world. Okay, and in addition to that, Russia is a nuclear state. It has huge stock of sophisticated weapons, and of course this country is one of the permanent member of United Nations Security Council. Okay, in United Nations Security Council we have 5 permanent countries which we call it a P5, that is first one Russia, UK, France, USA and China. Okay, so out of those P5, Russia is also one of them. Now let's discuss about Israel country. First look at the location of Israel in the map. Here you can see this, crossing this Gulf region. Over here we have Israel. Let me zoom in. Just look at here. Here we have Israel. I hope you can see this one. And this region within Israel, you can see here this one, West Bank, this one, and one more thing, here we have a Gaza Strip. Both these placed together near, that is known as Palestine. Okay, so Israel Palestine dispute also we will discuss in this particular part, right? So now I hope the map location is clear to all of you. You can see here this Israel is actually located in between in the dominated place of this Arab world. This is called Arab world, which consists of nearly 22 countries, right, over here. See, this Israel country, it emerged as the one of the most powerful nation in the 21st century. Okay, in terms of science and technology, defense, इंटेलिजेंस एंड ऑफकोर्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल, राइट. सो आज के इस 21st सेंचुरी में इसराइल जो एक पावरफुल नेशन की तरह इमर्ज हो रहा है इन एवरी डिफरेंट एरियाज, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंस में, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी, राइट. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट एशिया, वेस्ट एशियन कंट्रीज. सी, इस वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम ये है दैट दैट मिडिल ईस्ट लोकेशन. लेट मी शो यू द मैप अगेन. यू कैन सी हियर this place. This is West Asia, or you can say Middle East. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं. यहाँ पर बर्निंग काइंड ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज अराइज होते रहते हैं. एंड एट दिस बर्निंग प्लेस, बर्निंग पॉलिटिक्स, इस पर्टिकुलर लोकेशन में इसराइल लोकेटेड है, राइट. एंड जस्ट कीप दिस इन माइंड, दिस प्लेस इज अरब वर्ल्ड. ओके, यहाँ पर इनके कॉमन लैंग्वेज है अरेबिक लैंग्वेज, मुस्लिम डोमिनेटेड है, राइट. और जूइस जो स्टेट जो है, दिस कंट्री, जूइस कंट्री, दिस इज एक्चुअली इसराइल जो है ये एक जूइस स्टेट है, और यू कैन से यहाँ पर जूइस पॉपुलेशन है, राइट. सो और यहाँ बाकी जो रीजन है दैट इज
अरब वर्ल्ड, दैट इज मुस्लिम डोमिनेटेड है. और इनसाइड दिस इजराइल प्लेस यू कैन सी हियर, ये जो पैलेस्टाइन का पार्ट है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड प्लेस. ओके, ये पैलेस्टाइन में भी मुस्लिम डोमिनेशन ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, कुछ क्रिश्चियनिटी के लोग भी हैं, बट दिस इजराइल इज़ अ जूइश स्टेट. यहाँ पर जूइश रिलीजन के लोग हैं. दैट इज यू कैन से द फॉलोअर ऑफ जुडाइज्म, उनको हम जूइश कहते हैं. See, in spite of being located at the burning politics of West Asian countries, Israel, has achieved to a new heights of global political standings. Okay, आज global level पे काफ़ी ज़्यादा एक new height को achieve कर चुका है. All because of its defense power, technological innovations, उसका industrialization, and of course its agricultural development, right? Now, as I mentioned earlier, जो Israel जो है that is basically a small Jewish Zionist nation. Zionist means you can say supporter of Zionism. Zionism means you can say a person who believes in the development and protection of Jewish nation. दैट इज इन वॉट इज नाउ इसराइल. ओके, तो जायनिस्ट वही पर्सन होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो जूइश नेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है. दैट इज इसराइल. ओके, एंड इसराइल जो है इन स्पाइट ऑफ बीइंग लोकेटेड एट दिस जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑफ दिस अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन कंट्री, इट इज नाउ emerging as a very strong power in that particular place. Okay, now here you can see the map of Israel. I try to put a colored map of it. You can see here this is Israel, और इसराइल के बीच में यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है दिस इज गाजा स्ट्रिप एंड दिस वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं पैलेस्टाइन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द इंडिया इसराइल रिलेशनशिप. सी, इंडिया और इसराइल का जो रिलेशनशिप है दैट एक्चुअली यू कैन से दैट वाज एस्टैब्लिश अराउंड 1992 एंड सिंस दैन काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा था. एंड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर हुआ था, कारगिल वॉर. ओके, अबाउट इन डिटेल दैट विल डिस्कस इन दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक. ओके, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले बुक में ये सारे डिस्कशन हो जाएगा. सो ड्यूरिंग दैट कारगिल वॉर दिस इसराइल का जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे मोसाद. ओके, मोसाद जो है दैट इज़ एन इंटेलिजेंट एजेंसी ऑफ इसराइल. जिस तरीके से इंडिया का एक इंटेलिजेंट एजेंसी है दैट इज रॉ मीन्स वॉट, research and analysis wing. Same way Mossad जो है that is an intelligence agency of Israel. So just this intelligence agency actually provided a very critical intelligent inputs, कुछ information provide किया था that was quite helpful for India during that war. Okay, और इनका जो relationship है between India and Israel that with the passage of time it gained momentum and in depth and in diversity it achieved a good height. Okay, now India and Israel, both these countries signed a lot of agreements recently. For example, you can see here, they signed agreement like setting up India-Israel Technological Innovation Fund. Then they also signed various agreement in order to do cooperation in space technology, water conservation in India. और एक 3-year work program भी start किया था in agriculture. As I mentioned earlier that Israel का strength क्या है because of its technological innovation, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. दैट्स वाई इंडिया ने भी इसराइल के साथ जो एग्रीमेंट एक साइन किए थे 2018 से लेकर 20 तक 3-year वर्क प्रोग्राम एक एग्रीकल्चर फील्ड में साइन किया था. राइट, फ्यू मोर थिंग्स. इंडिया इज Israel's 7th largest trading partner and number 3 arms supplier. Okay, and India also advocates that Palestine issues should be resolved through peaceful and democratic manner. Okay, now I will explain about Israel and Palestine issue in brief. Okay, now see, Palestine and Israel conflict के बारे में discuss करते. Okay, and as such in your book it is not mentioned separately that Palestine Israel conflict you should know about it. But since Israel topic has been added for this session and it's something very connected with the Palestine, okay, so possibilities are there that you may get question regarding Israel Palestine conflict. Okay, so बहुत ही brief information provide करूँगी, just listen to that and look at the map. पहले ये पैलेस्टाइन था, राइट, और धीरे धीरे यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट हो गया दैट इज इसराइल. एक चीज़ ध्यान में रखना, पैलेस्टाइन में जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अरब वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, राइट, दैट इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड है वहाँ पे. ओके, और जो वाइट पोर्शन में दिया हुआ यहाँ पे दैट इज़ डोमिनेटेड बाय द जूइश पॉपुलेशन.
ओके, डिफरेंट है वो। जुडाइज्म रिलीजन जो फॉलो करते हैं उन्हें ज्यूज कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखो चेंज क्या हुआ। 1946 के मैप में देख रहे हैं पैलेस्टाइन सबसे बड़ा है यहाँ पर। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके जो लैंड को जो है वो एक दूसरा ग्रुप ऑक्यूपाई कर रहा है, यू कैन सी हियर। और फाइनली 2012 तक पैलेस्टाइन का जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही कम हो गया, एंड नाउ फुल एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द majority of the area, that you can say around 78% के around, that is occupied by the Israel. Okay, so ये इतना change कैसे हुआ, that is the question, and यहीं पर conflict exist करता है. Now let's look at the conflict, थोड़ा historically information provide करते हो, just listen to that. Israel and Palestine conflict, originates from around 2000 years ago. बिल्कुल बहुत ही पुराना ये conflict है. Listen carefully. बेसिकली ये था कि दैट 2000 ईयर्स अगो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन में जो ग्रीन कलर में यहाँ शो किया हुआ है मैप में, दिस इज ऑक्यूपाइड बाय, और यू कैन से दिस वाज द होम लैंड ऑफ जूइश पीपल. जो आज के टाइम पे इजराइल की पॉपुलेशन है दैट इज जूइश पॉपुलेशन, राइट. सो इनिशियली 2000 ईयर्स अगो इस पर्टिकुलर ये जो लैंड है इट वॉज देयर होम लैंड, यहाँ पर जूइश लोग ही रहते थे. बट दे वर फोर्स्ड टू गो आउट फ्रॉम दिस प्लेस बाय रोमन्स. ओके, रोमन्स ने उनको फोर्स किया था कि दैट यू हैव टू गो आउट फ्रॉम हियर. वो डिफरेंट पार्ट्स, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में चले गए, राइट. बट अराउंड दिस 19th सेंचुरी एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. जायनिस्ट कौन है? वही लोग, द पर्सन हु बिलीव्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ जूइश लैंड, जूइश नेशन. ओके, जायनिस्ट वही ग्रुप है कि वो ये चाहते हैं कि इनका मेन एम यही है कि ये जो हिस्टोरिकली इनका जो लोकेशन जो था, जो प्लेस जो था जहाँ वो रहते थे, वो वहाँ पर जूइश पॉपुलेशन को वापस आना है यहाँ पर और इस होमलैंड को प्रोटेक्ट करना है, राइट. और ये एक जूइश नेशन यहाँ पर दोबारा से इस्टेब्लिश करना है. दैट वाज द एम ऑफ दिस वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब इस बिकॉज ऑफ ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, धीरे धीरे फिर जो लोग जो थे, जो भी जूइश पॉपुलेशन के डिफरेंट वर्ल्ड में जो थे, दे स्टार्टेड मूविंग टू दिस प्लेस एंड सेटलिंग ओवर हियर. यू कैन सी हियर 1946 के मैप में देखना ध्यान से कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर में वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड अरब वर्ल्ड के हैं, और धीरे धीरे जो जूइश पीपल है दे स्टार्टेड सेटलिंग ओवर नियर बाय दिस प्लेस. टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वहाँ पर और ज़्यादा जो जूइश पॉपुलेशन की जो मूवमेंट जो थी दैट इंक्रीज्ड ओवर हियर. यू रिमेंबर दैट नाजी प्रोसिक्यूशन ऑफ जूइश इन जर्मनी बाय हिटलर, राइट. हिटलर ने काफ़ी जूइश पीपल को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालकर उनको मारा था. तो एट दैट टाइम ऑल्सो बहुत सारे जूइश पीपल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे लेफ्ट फ्रॉम दैट जर्मनी प्लेस, और वहाँ ये जो उनका हिस्टोरिकल होम लैंड है यहाँ पर वो आने लग गए, और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती गई, एंड दैट लेड टू कन्फ्लिक्ट. ओके, और ब्रिटेन जो था अराउंड 1916, ओके, 1916 में ये जो पैलेस्टाइन जो था दिस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन. और ब्रिटेन ने भी ये मान लिया था दैट जूइश का एक सेपरेट नेशन यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, राइट. एंड टाइम के साथ जब और पॉपुलेशन यहाँ पर आते गए दैट लेड टू कन्फ्लिक्ट विद द पैलेस्टाइन पीपल. और आसपास में जो लोग रहते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड ऑल, वहाँ पर भी पॉपुलेशन अरब वर्ल्ड के मुस्लिम, और यहाँ पैलेस्टाइन भी मुस्लिम. तो ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी जूइश पीपल, ओके, कि यहाँ पर वो किस तरीके से अपना एक सेपरेट नेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट. और इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ विद द इजराइल, बाय इजिप्ट, बाय सीरिया, बाय इराक, जॉर्डन, सब वो ये जूइश पीपल जो एक नया देश यहाँ क्रिएट करना चाहते थे दैट वाज इजराइल. वो इजराइल के साथ काफ़ी वॉर भी यहाँ पर हुए थे. बट फाइनली इजराइल वोन दैट बैटल एंड इट बिकेम इंडिपेंडेंट. अपना एक नया कंट्री उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश कर लिया था बाय 1948. ओके, 1948 में इस्टेब्लिश तो कर लिया था, बट आफ्टर दैट सी उससे पहले यूएन का भी इंटरवेंशन था, यूनाइटेड नेशन ने भी इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी थी, बट वो पीसफुल तरीके से सॉल्व नहीं हुआ. और धीरे धीरे वो इजराइल जो एक इंडिपेंडेंट नेशन यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली it occupied the majority of the land of Palestine. You can see here Palestine पहले कितना बड़ा था, now its area decreased with the passage of time. अब ये दो पार्ट रह गया, that is West Bank and Gaza Strip. दो लैंड को मिला के हम कहते हैं पैलेस्टाइन, ओके. एंड अब वो वेस्ट बैंक में यू कैन सी हियर वो पूरा ग्रीन पार्ट काफ़ी कम होते जा रहे. इट शोज दैट समवेयर और द अदर इजराइल इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दैट मेजॉरिटी ऑफ एरिया. सो ये जो कन्फ्लिक्ट है इजराइल पैलेस्टाइन, इट्स स्टिल गोइंग ऑन पीसफुली, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ.
recently, Donald Trump tried to solve their problem through through his proposal, but वो भी Israel और Palestine नहीं माने थे, and that's this conflict, still it continuing. And India always tells Israel that ये जो Palestine और Israel conflict जो है, it should be solved in a peaceful and democratic manner. Being a country of a largest democracy in the world, right? इंडिया हमेशा यही सजेस्ट करता है इसराइल को इस प्रॉब्लम को पीसफुल तरीके से सॉल्व करना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट इन ब्रीफ. So I hope Israel-Palestine conflict is clear to all of you. See, in today's time, we are living in a 21st century. Okay, so इस 21st century में ये माना जाता है कि that India is emerging as one of the powerful country at the global level. Okay, so India के बारे में डिस्कस करते हैं. And world level की अगर हम बात करें, this India is now playing very important role at the multi-dimensional way. Multi-dimensional, different angle में India is now playing a very positive role. You can say in terms of economy, in terms of culture, in terms of strategic position. इंडिया का जो पॉपुलेशन है 130 करोड़, दैट इज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट इंडिया का जो पॉपुलेशन दैट मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय द यंग पॉपुलेशन, right? So India is because of its multi-dimensional role in different field, India is now emerging as one of the superpower at this 21st century. Okay, now in terms of economic perspective हम बात करें, that India is now aiming to achieve $5 trillion economy. Okay, India का जो present GDP है that stands around $2.94 trillion. ओके, जीडीपी जो वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडिया का जो है दैट स्टैंड्स अराउंड 2.94 ट्रिलियन. बट इंडिया एम करता है कि वो उसका जो जीडीपी वैल्यू जो है दैट शुड बी अचीव टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो बनना चाहता है, राइट, बाय 2025. लेट्स सी वेदर दैट विल बी अचीव और नॉट, बट येस, बिकॉज ऑफ दिस एम्बिशन India is now a very good attractive, it is now emerging as one of the strong power at this 21st century. Okay, और इंडिया का जो मार्केट जो है इट प्रोवाइड्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स. ओके, और इंडिया का जो एंशियंट कल्चर, पुराना सिविलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो मेक्स इट इंडिया अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर. एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इफ यू लुक एट द इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मीन्स बेसिकली द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री. जो इंडिया के लोग जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में जो सेटल हुए हैं, तो उसका अगर नंबर देखोगे तो दैट विल स्टैंड्स अराउंड 200 million people. Okay, so by because of these 200 million people of Indian presence in different part of the world, that makes India का किस तरीके से dominance है. It shows that India का जो culture है that spread around different part of the world. Okay, and that's the reason that it is now emerging as a new center of power. अगर हम strategy की position की बात करें, इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है दैट इज नाउ इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ सेल्फ सफिशिएंट विथ इंडिजिनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर. आज के टाइम पे इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है इन टर्म्स ऑफ military, in terms of producing all the nuclear weapons, nuclear technology that are required for the nuclear power. Okay, so बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ें चाहिए, दैट इज़ नाउ इंडिया इज बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट. वो अभी खुद अपने आप से प्रोड्यूस कर रहा है. इंडिजिनियस मीन्स फॉर एग्जाम्पल लोकल, नेटिव, ओरिजिनल प्लेस, अपने विद इन इंडिया में वो अब प्रोड्यूस कर रहा है. वो डिपेंडेंसी को थोड़ा रिड्यूस कर रहा है. बट येस, 100% नहीं हुआ, बट मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू दिस मिलिट्री न्यूक्लियर पावर इंडिया इज नाउ प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियसली. ओके, एंड इंडिया का जो इंपॉर्टेंट स्कीम जो है दैट इज मेक इन इंडिया स्कीम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे भी इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, राइट. बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेस, India is now emerging as a very strong center of power in the present world. So this is all about India. I hope this one clear. So we have discussed about Russia, Israel and India in this particular part. See, India, Israel we have seen in this particular part. If you should know about India-Russia relationship as well. For that you can watch the one of the video of second chapter, end of bipolarity में मैंने उसको cover किया हुआ है. So for the to watch that, just go and see in the playlist. Okay, thank you for watching this video.